अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो there's a very logical question ना that how you're going to write the pre of that year. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of the static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके। Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी। Strong foundation. Hello everybody, my name is Tejas. I have secured AIR 308 in Civil Services Examination 2024. I hail from the district of रेवाड़ी हरियाणा. मैंने अपनी पूरी जो शिक्षा है अपनी 10th और 12th रेवाड़ी से ही करी है. उसके बाद आई वेंट फॉर द बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग फ्रॉम IIT दिल्ली एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2020. उसके बाद क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन था मैथ्स एंड कंप्यूटिंग था, तो मेरा ऑप्शनल का जो लिंक था वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल मैंने सोचा लिया जाए. एंड आई थॉट कि लेट अस go for an integrated master's and a PhD program and went for IIT गांधीनगर. But later on realized कि अगर मुझे UPSC की तरफ ही जाना है तो it is not easy to balance both. So I quit, I terminated my program there in 2022 and came to Delhi to start the preparation. It has been a long journey encompassing 5 years. And I will be sharing a strategy for the GS mains because this year I have scored 450 marks in the journal studies paper. अब जैसा कि हम देख सकते हैं सिर्फ 1 महीना बचा है प्रिपरेशन का, और क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी मैथ्स था तो बैलेंसिंग बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड द GS हैज़ बीन मतलब इट हैज़ बीन अ चैलेंज फॉर मी ऑल्सो बिकॉज टेक्निकल ऑप्शंस यूजुअली ज़्यादा टाइम ले जाते हैं. तो आई विल बी शेयरिंग कि इस 1 मंथ में आप कैसे मतलब अपना GS का मेंस प्रिपेयर कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको एक अच्छा स्कोर भी मिल सकता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिटेल्ड स्ट्रैटेजी ऑन द जर्नल स्टडीज़ मेंस पेपर. स्टार्टिंग विद द पेपर, उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि UPSC ने आपको सिर्फ 2 चीज़ें प्रोवाइड करी है. एक है सिलेबस और एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो आपके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका क्वेश्चन पेपर और PYQs होना चाहिए. बिकॉज अगर आपकी एक बार प्रूफ रीडिंग हो चुकी है तो उसके बाद यू विल वांट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन पर से. देन यू शुड गो फॉर द रिसोर्सेज एंड द बुक लिस्ट कि किस तरीके के सवाल पहले पूछे जा रहे हैं. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे डिवाइस करेंगे. तो और ये बात किसी भी जर्नल स्टडीज़ पेपर के लिए लागू होती है 1, 2, 3, 4. Otherwise, the syllabus is huge. It's the previous year question paper and the syllabus, जिससे आप restrict कर पाएंगे इतने vast syllabus को, right? So, for example, the GS1 से हम start करते हैं. I have scored 118 this year in the GS General Studies Paper 1. As we know, this paper encompasses our 3 subjects: history, geography, and the sociology. So, importantly enough, अब history, because remember कि syllabus क्या given है. In syllabus, I think the word is like the salient art forms of architecture from the modern times to the ancient times to the modern times, right? तो syllabus इतना defined है. अब आप सोचेंगे कि इस syllabus में तो पूरी history ही cover हो जाएगी, बहुत सारी dynasties आएंगी, art and architecture हमें बहुतों का करना पड़ेगा. But no, आप अपने PYQs को trace करिए. You will find कि उन्होंने various spans of history में बहुत specific, prominent dynasties के बारे में पूछा है. They have not gone for the dynasties जो हम बहुत rarely पढ़ते हैं, like the Yadavas dynasty of Warangal. They have asked important periods में, famous periods like the Indus Valley civilization, then moving to the modern, then the before modern, of course the Vedic civilization, and then moving on to the Gupta period, the post-Gupta period, and in the medieval India, they have asked the early medieval in terms of the Cholas. And then moving on to the Delhi Sultanate and the Mughals. And इसके बारे में भी you just need to prepare their specific art and architectural forms and their impact on society. तो इससे जो syllabus है ना वो बहुत restricted हो जाता है.
सो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के हिस्ट्री सिलेबस के अंदर from your PYQs and your the syllabus listing, you will be able to get down कि इस समय आपको क्या करने के लिए आप क्या करें जिससे एक बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ. नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ कि अब आप मटेरियल को देखिए कि क्या मैंने अभी तक जितना मटेरियल पढ़ा है मैं अपने इन PYQs को आंसर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहे तो गो फॉर अगैन गूगल के सोर्सेज लीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करिए, मेक नोट्स. In the examination hall, it is very important to realize your strengths and weaknesses. For example, if a question of this year in 2024, a Chola was being repeated, Chola art and architecture, and the Pallav art and literature question came anew to me, तो मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ चोला में है, तो अगर आई विल गो फॉर अ रिलेटिव कंपैरिजन, इन माई हेड आई विल रियलाइज कि अगर मोस्टली इसमें लोग 10 से 10 पॉइंट्स कवर करेंगे encompassing famous architectural sculpture paintings of the Chola dynasty, but I will not only ensure this in my answer, but I would also write something related to the inscriptions which I've seen in the prelims. Like I will talk about the Uttamir inscription, the Kudavalai system. I can also write कि there is a reference of the Tinai landscapes from the inscriptions. तो जो प्रीलिम्स में आप हम लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री के अंदर, दैट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरलिंकेज विद द मेंस, एंड आप वही पॉइंट्स एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं अपने और आंसर को एनहांस करने के लिए. वैल्यू एडिशन इन हिस्ट्री आई हैव सीन पीपल यूज़ मैप्स, राइट. पीपल हमारे पास NCERTs हमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करती है जो कई बार हम स्किप कर जाते हैं. जैसे आई थिंक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसमें क्वेश्चन था मिडिवल टेम्पल्स स्कल्पचर्स. अब ऐसे में कैसे वो सोशल लाइफ को दिखाते हैं, डिपिक्ट करते हैं. NCERT उसमें एक ब्यूटीफुल एक एग्जांपल देती है कि जगन्नाथ टेम्पल का जो वुडन डीटी है, तो वो वुड का क्यों है, बिकॉज ट्राइबल्स हैव ट्राइड टू गो फॉर अ संस्कृताइजेशन सो दैट देयर इज एन अपवर्ड मोबिलिटी. तो आपने स्कल्पचर भी बताया, मिडिवल इंडिया से भी लिया और उसको लिंक किया सोशल एस्पेक्ट से कि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ संस्कृताइजेशन फॉर एन सोशल अपवर्ड सोशल मोबिलिटी पर से, राइट. तो इस तरीके से आप वो वाला वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं. थर्डली विच आई सी मैनी पीपल फॉरगेट इज ट्रैवलर्स अकाउंट एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, तो आप अपने हिस्ट्री के सेक्शन में उनको भी यूज़ कर सकते हैं. हमें बहुत स्पेसिफिक ट्रैवलर्स की नीड नहीं है. हम जो फेमस ट्रैवलर्स हैं फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया टू द मिडिवल इंडिया, ह्यूनसांग, राइट, फाहिम एंड मेगास्थेंस, इनको कोट कर सकते हैं अपने आंसर में टू ब्यूटिफाई इट. फॉर एग्जाम्पल इन वन ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जहाँ पे इंडियन एंशिएंट इंडिया एंड इट्स जोग्राफी का लिंकेज था, सो आई स्टार्टेड माई आंसर विद कि ह्यूनसांग सेड व्हेन ही वाज स्टैंडिंग ऑन द हिंदू कुश माउंटेन्स कि देयर आर लॉट ऑफ माउंटेन्स जब वो इंडिया को देखते हैं और नीचे एक वास्ट ओशन ऑफ सी है. सो दिस इज नथिंग बट द ट्रैवलर इज ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. हिस्टोरियंस को भी कोट कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर, लाइक डायना एल एक, अ फेमस हिस्टोरियन, जो कि दिखाते हैं कि इंडिया के जो प्रिडोमिनेंट जो 4 हमारे पास पिलग्रिमेज साइट से आदि शंकराचार्य वाले, तो उसमें कैसे एक सेफेज पैसेज ऑफ ट्रैवलरिंग रहा है. सो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग नोन एज अ सेक्रेड जोग्राफी, जो कि एंशिएंट इंडिया की जोग्राफी के थ्रू डिफाइन उसे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के पर्पस के लिए डिफाइन करता है. So these are the value additions that you can do in your history paper for GS1. Moving on to the geography I refer to class 11th and 12th NCERTs only, and they are very good also, मतलब क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, in the sense कि because जैसे क्वेश्चन आ गया ट्विस्टर, पढ़ा ही नहीं था, and the question was कि why they are predominant in the region of the Gulf of Mexico. So at that pressure time, what I will write, twister है, something is twisting, I can twist water or air, I twisted both, right. So अब now because it is I am talking about the circulation, तो मेरे पास geographical key terms होंगी जो मैंने NCERTs में पढ़ी ही हैं, factors which are responsible for the circulation of air and water, and मैं वही लिख दूंगा. एंड बिकॉज गल्फ ऑफ मेक्सिको का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम ओशन करंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ग्राफ हम देखते हैं जहाँ पे हम सरगासो सी को अंडरस्टैंड करते हैं, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, कैनरी करंट एंड द वेस्टर्न इक्वेटोरियल करंट, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो मैं पूरे को उसके एक मैप में बना दूंगा. सिमिलर इन द केसेस ऑफ अरोरा बोरेलिस ऑल्सो, एन इंपॉर्टेंट डायग्राम विद अर्थ हैज इट सेंटर अगर आप देखेंगे, एंड टॉकिंग अबाउट द वैन एलेंट बेल्ट्स एंड द इंटरैक्शन ऑफ द सोलर फेयर्स. तो ये सारा बेसिक्स ऑफ NCERTs में गिवन है और आप यूज़ कर सकते हैं. इवन ह्यूमन जोग्राफी वाली बुक को भी स्टूडेंट्स जनरली नेग्लेक्ट, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन आया था डेमोग्राफिक विंटर का क्वेश्चन. तो अगर
रिमेंबर दिस थिंग कि जोग्राफी जैसे ऑप्शनल में या फिर किसी भी पर से जनरल स्टडीज़ के पेपर में यू विल वांट टू ब्रिंग अबाउट द की टर्म्स रिलेटिंग टू दैट सब्जेक्ट, ताकि एग्जामिनर को लगे कि वो आंसर उस सब्जेक्ट के लिए टेक्निकल हो रहा है एंड दे विल रिवॉर्ड यू मोर मार्क्स. तो बिकॉज डेमोग्राफी क्विंटर समटाइम इट इज़ रिलेटेड टू द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. सो व्हाट इज़ द की टर्म विच आई कैन थिंक ऑफ? इट्स समथिंग नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. उसको मैं कैसे डिफाइन करता हूँ ह्यूमन जोग्राफी में? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. एंड इवेंचुअली एनसीईआरटीज़ में फेज वाइज ट्रांजिशन आपको गिवन है. अगर ह्यूमन जोग्राफी की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि 1900 से 1920s में कैसा था बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है, फिर प्री इंडिपेंडेंस एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो आप ये देख पाएंगे कि आप उसे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं फ्यूचर में एंड शो कि बर्थ रेट नेगेटिव हो रहा है एंड डेथ रेट उससे बढ़ रहा है, तो एक ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो रहा है. सो एनसीईआरटीज़ हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल in our geography preparation also. So geography में it's using maps, showing resources on the maps, and your basic NCERTs will help you along with your PYQ because आप repetitions बहुत देखेंगे themes का, cloud burst, again a repeat. Then the society एक अलग tricky topic हो जाता है which is not so much interlinked with our prelims syllabus. तो उसमें micro listing जो हमें UPSC का syllabus देता है वो बहुत help करता है. तो eventually पहली important strategy क्या हो सकती है कि सबसे पहले हम terms को समझें, राइट जो वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी दे रखा है उसको समझे. उसके बाद हम गो फॉर वैल्यू एडिशन, क्योंकि आजकल सोसाइटीज़ के क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स इन नेचर आ रहे हैं. दे आर मोर ऑफ एन अप्लाइड सोशियोलॉजी, राइट. तो इसलिए इट्स आर इम्पेरेटिव ड्यूटी टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड बेसिक इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजीज़. तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले आपको वो सोसाइटी की टर्म्स किसी भी रिसोर्स से आप उसे कवर कर सकते हैं. एग्जांपल्स इसमें आई एम टेलिंग यू 11th-12th की एनसीईआरटीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल की टर्म्स देते हैं जो आप आइडेंटिफाई करके अपने नोट्स में या फिर अपने क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल द की टर्म्स रिलेटिंग टू द डोमिनेंट कास्ट, राइटिंग अबाउट अ ग्रेटर ट्रेडिशन और अ लिटिल ट्रेडिशन, the westernization, the consumerism, urbanization के अंदर काफ़ी सारी sociological terms like ghettoization, urban conglomerations, ये सारी NCERTs में ही mentioned है with proper case relevances. तो ये आप अपने applied sociology के concepts को answer करने में बहुत help करेगा. एक और बात भी इसमें important है कि आप themes को पकड़िए. क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आएगा तो कुछ एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग थीम होगी. सोसाइटी इज नथिंग बट देयर आर वेव्स ऑफ चेंज गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी एंड उसका इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स, राइट. तो अगर ग्लोबलाइजेशन की वेव है, अर्बनाइजेशन की वेव है, आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया देयर इज आइसोलेशन, देयर इज इंडिविजुअलिज्म, राइट. सो देयर आर चेंजिंग नेचर ऑफ मैरिजेस. दिस हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट थीम. क्वेश्चन एक बार पूछा भी है कि मैरिज इज नो लॉन्गर सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन. सो दिस इज एन अंडरलाइंग थीम, चेंजिंग नेचर ऑफ मैरिज एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. 2024 में इसका अगर हम 2024 में इसका एप्लीकेशन देखें तो कैसे आया था कि इंटर कास्ट मैरिजेस विच आर ऑफ सेम सोशो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज्ड वेयर इंटर रिलीजियस नॉट. तो सबसे पहले मैं अगर थीम को आइडेंटिफाई कर लूँ कि देयर हैव बीन अ चेंजिंग नेचर ऑफ मैरिजेस और उसके बाद उस क्वेश्चन को आंसर करूँ तो बहुत क्विकली कुछ सेकेंड्स में ही मैं उसको आइडेंटिफाई करके लिख दूंगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशियोलॉजिकल आंसर्स को आप उसमें सबसे पहले सोशियोलॉजिकल की टर्म्स लिखें और थीम्स को पकड़िए. उसके बेसिस पे आप उस फैक्टर को अपने आंसर में लिस्ट डाउन करिए और फिर देखिएगा जब आप बॉडी के अंदर सब हेडिंग्स बनाएंगे तो आप ऊपर से ही बहुत ईजिली सब पॉइंट्स जनरेट कर पाएंगे. So this was a detailed strategy on the GS1 for your upcoming mains also and for your journal preparation per se. Moving on to the GS2, that is the General Studies Paper 2. Obviously, it is divided into 4 components. There is a component of the polity, component of governance, social justice and the international relations. तो जब इसमें से जो important key areas I will tell you strategically इस point of time पे क्या किया जा सकता है. तो अगर मुझे जैसे IR prepare करना है तो IR में भी आई थिंक देर आर सम से 5 डोमेन्स जिसमें मैं प्रिपेयर करना चाहूँगा कि इंडिया एंड द बायलैटरल सेटअप, इंडिया मल्टीलेटरल सेटअप, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फेलियर. एक हो गया जैसे इंडिया एंड द डायस्पोरा. And the last is something a philosophical question which can be like कि how India can navigate between the West and the East. तो इन themes पे मैंने अपने आप को prepare कर लिया. अब now countries may change but my underlying keywords related to the India and the bilateral setup will remain the same. The energy ties, the people to people ties, maritime security ties, etc. अब मैं इसे strategically कम time में कैसे prepare करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि
प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो प्रिडोमिनेंट इंटरनेशनल हैपनिंग्स रही हैं उस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं. सो व्हाट आई विल गो फॉर इज कि आई विल पिक अप एनी 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. उनका मेंस का मैंने टेस्ट सीरीज़ निकाला, उनमें फुल लेंथ में मुझे जनरल स्टडीज़ में 4 क्वेश्चंस मिले. तो कवरिंग say even 2 test series will yield me say around 16 questions, and if I do them diligently मेरा IR पूरा complete. Governance also has a very specific micro listing as social justice, because education, health, human resources an important component of the social justice. और governance में syllabus में keyword mentioned है important aspects of governance, citizen charter, right? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ सिलेबस से कर लें और फिर उसमें वैल्यू एडेड टॉपर्स नोट्स से एग्जाम्पल्स को एक्सट्रैक्ट कर लें ताकि आप आंसर कर पाएँ. अब इसमें वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कई बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ जाएँ तो उन्हें कैसे हैंडल करना है. रिमेंबर, आप कभी भी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या नहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन मेंस में देखते हैं ना, तो इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द सिलेबस. For example, there was a question on 2024 कि the doctrine of democratic governance entails that it was something like कि entails that the public perception of integrity and commitment to the public services becomes absolutely positive, and it was like discussed. Now one must wonder in that examination moment कि doctrine of democratic governance तो मुझे पता ही नहीं है. Now try to think whatever you have studied in your syllabus in GS paper 2 relating to the governance, you have studied good governance, and I think जो democratic governance और good governance में इतना कुछ फ़र्क नहीं होगा. Good governance में हम 8 UNDP के principles पढ़ते हैं, उन्हीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हीं का ही लैक दिखा सकते हैं प्रेजेंट गवर्नेंस इश्यूज़ में, और ये बता सकते हैं कि इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज उन जो शॉर्टकमिंग्स हैं, द लैकिंग ऑफ दोज 8 प्रिंसिपल्स को कैसे सॉल्व करता है. तो अगर आपने इजीली क्वेश्चन को उस समय डाइसेक्ट कर लिया ट्रेसिंग बैक टू द सिलेबस, तो आपके लिए वो तुरंत आंसर करना विद इन अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स बहुत ईजी रहेगा. फंडामेंटली लेट अस नाउ मूव ऑन टू द पॉलिटी सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज कवर करता है. तो इसमें आई हैव सीन स्टूडेंट्स आर नॉट फोकसिंग अपॉन दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं, जैसे सिलेबस में मैंशन है रोल ऑफ पार्लियामेंट. सो व्हेन आई अटर दिस वर्ड रोल ऑफ पार्लियामेंट, बहुत सिंपल चीज़ है, बट आपके मन में तुरंत जो कीवर्ड्स हैं वो फ्लो करने चाहिए. फॉर एग्जांपल, यू विल टेल टू मी कि देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव रूल, देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव रोल, देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट रोल बिकॉज ओनली इट कैन डू एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देयर इज़ अ डेलिबरेटिव रोल, देयर इज़ एन अपॉइंटमेंट रोल, देयर इज़ अ क्वाशी जुडिशियल रोल, देन ऑल्सो इट हैज़ अ फाइनेंशियल रोल. तो द पॉइंट इज व्हेन अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस आप उससे खोलें, एंड नाउ you should know specific keywords जो आपके माइंड में एकदम आए, एंड देन योर एक पॉलिटी के आंसर को बेटर क्या चीज़ें बनाती हैं. आई थिंक फर्स्ट 3 मतलब पहली 3 जो चीज़ मैं सोच पा रहा हूँ, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डालेंगे, आप जजमेंट्स डालेंगे और कमेटी के रिकमेंडेशंस डालेंगे. इसके अलावा आप आजकल कोड्स डाल सकते हैं या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि इंटरनेशनल और नेशनल है उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. बट योर बेसिक सिलेबस मस्ट बी वेरी मच कवर्ड. अगर क्वेश्चन राइट्स पे आता है तो यू मस्ट बी वेरी थरो विद योर राइट्स बिकॉज इट विल बी रिपीटेड. तो ये नेविगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल 2024 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था प्रोविजंस रिलेटेड टू द पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल. अब वहाँ पे मुझे पता है कि मैं और जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं हम लोग ऑलमोस्ट सेम लिख रहे होंगे, इतना कुछ एक्सेप्शनल नहीं कर पा रहे होंगे. तो मेरे को जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन उसमें था, दैट वाज रिलेटेड टू द राइट टू प्राइवेसी इज इंटीग्रल टू द पर्सनल लिबर्टी एंड द डिग्निटी इन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, उसमें अपने मार्क्स ज़्यादा फेच करने की कोशिश करूँगा. और इसीलिए मैं ऑलरेडी जो बेसिक्स ऑफ द सिलेबस है, जहाँ पे वो सिंपल थीम्स के बारे में बात करता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, फेडरलिज्म, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, इनको बहुत एक्सटेंसिवली विद पर्टिकुलर वैल्यू एडिशन प्रिपेयर करके जाऊंगा, ताकि अगर मेरे कुछ क्वेश्चंस में मैं एवरेज परफॉर्म कर रहा हूं तो कुछ क्वेश्चंस में मैं एक्सेप्शनल परफॉर्म करूं. तो दिस इज GS2. नाउ मूविंग टू द GS3 स्ट्रैटेजी. अगर मैं GS3 स्ट्रैटेजी की बात करूं तो इसमें भी हम आई थिंक 4 कंपोनेंट्स में पूरे सिलेबस को बांट सकते हैं. इकोनॉमी, फर्स्ट इकोनॉमी, देन वी कैन टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, then the third will be disaster management and environment, and fourth can be the internal security. यहाँ पे भी स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर और इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत प्रेडिक्टेबल थीम्स हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत इजीली आपको माइक्रो टॉपिक्स लिस्टिंग करके देता है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है. एग्रीकल्चर में इट टॉक्स अबाउट द अपस्ट्रीम चैलेंजेस, डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग लाइक द PDS, बफर स्टॉक्स,
मेजर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया। तो आप इसको एक्सटेंसिवली प्रिपेयर आराम से कर सकते हैं किसी भी एक सोर्स से। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी में भी द डायमेंशंस आर मोर और लेस द सेम। You will talk about the left-wing extremism, the northeast insurgency, then you can talk about the border disputes, the maritime security aspects, the cyber security aspects, narco-terrorism aspects, and overall a terrorism की picture जानना बहुत important है, and the transnational organized crime। तो major इंटरनल सिक्योरिटी के ये कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें आपको लिए सबसे इंपॉर्टेंटली आपको क्या कलेक्ट करके रखना है मटेरियल, कि आपको प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडिया पता हो, राइट। देन आपको चैलेंजेस पता हो जो हम फेस कर रहे हैं, देन यू कैन टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। तो and then your internal security is done and dusted, because those 4 questions which will come in our GS paper 3 will be done। GS 3 में difficult होता है इकोनॉमी के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना एंड द साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड नॉलेज पे प्रिपेयर हो जाते हैं। तो साइंस एंड टेक के लिए वन वुड ऑलवेज गो फॉर द मेजर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जो पिछले 2 सालों में आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। बट आंसर में ट्राई टू ब्रिंग अबाउट द की टर्म्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस बार एक क्वेश्चन आया था एस्ट्रॉइड डिटेक्शन टेक्निक्स। सो इन दैट हाउ कुड आई हैव गॉट मोर मार्क्स इज, अगर मैं वहाँ पे I could not bring about any scientific principles। तो अगर मैं थोड़े मेंशन कर देता लाइक द काइनेटिक एनर्जी एंड द रोल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो माइट भी वो आंसर और टेक्निकल लगता, विच आई हैव सीन इन अ डिफरेंस व्हेन आई अटेम्प्टेड माय 2023 पेपर। जब मैंने वहाँ पे जब AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आया था, तो आई टॉक्ड अबाउट द जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स। तो जब ऐसी की टर्म्स आप उस पर्टिकुलर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से लिखेंगे तो आपको वो मोर रिवॉर्ड करेंगी। सिमिलरली गोज विद द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की पहली बात तो वो क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करना थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट देयर आर सर्टेन themes which are repetitive, like the inclusive growth, right, the monetary policy committee, but the questions can be tough क्योंकि इस बार पूछा था कि why food inflation and the role of monetary policy की whether it can control or not the food inflation per se। तो ऐसे questions में answer इकोनॉमिकली उसमें साउंड करने के लिए आप मैप्स को, उसमें ग्राफ्स को प्रिपेयर कर सकते हो। टेक हेल्प फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, वो आपको बहुत टर्म्स देता है। इवन इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए भी वो आपको लाइक अजाइल अप्रोच, बारबेल स्ट्रैटेजीज, ऐसी की टर्म्स आप उठा सकते हो और अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। द ट्रिनिटी डिलेमा, राइट। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने एक बार पूरा सिलेबस का माइक्रो लिस्टिंग जो टॉपिक्स हैं, जहाँ पे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करता है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात करता है, प्लानिंग की बात करता है, इनके आपने 1 पेज पे अपने जो प्रेडोमिनेंट चीज़ें हैं वो लिख लिया कि हिस्ट्री क्या थी, हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए, अभी फ़िलहाल क्या चैलेंजेस हैं एंड आगे हम कैसे मूव ऑन कर सकते हैं विकसित भारत के लिए। तो दीज कैन बी योर बेसिक टाइमलाइन एंड रेस्ट यू कैन। जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनमें कोई बात नहीं, बिकॉज अगेन यू नो कि कुछ क्वेश्चंस एवरेज जाने वाले हैं, दिमाग में ये माइंडसेट लेके चलना है। तो इसीलिए आप उन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे वर्क करेंगे कि वेयर देयर विल बी हायर नंबर ऑफ, जहाँ पे एज ले सके। फॉर एग्जाम्पल आप इंक्लूसिव ग्रोथ पे एज ले सकते थे, बट अगर आपने उड़ान स्कीम के प्रोविजंस आपको पता ही नहीं है तो उस पर आप कैसे एज लोगे, उस पर आपको एक जेनरिक आंसर लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द ओवरऑल GS3 स्ट्रैटेजी for the mains syllabus, and then moving on to the very important component, ethics, integrity and aptitude part, which is our general studies 4 paper. So this paper has 2 sections, right, section A and section B. Increasingly enough, I'm telling you that the paper has become more analytical in nature, but what saves us is again our coverage of the PYQs and the syllabus। किसी भी analytical question को या applied ethics के question को try to trace it back to the syllabus micro listing। For example, if there is a question कि स्वच्छ भारत मिशन में कैसे attitude सक्सेस रहा है, तो आप उसे ट्रेस बैक करिए। एटीट्यूड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें आप एटीट्यूडनल चेंज का टेक्निक्स पढ़ते हैं, राइट। उसमें फर्दर लिखा हुआ है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। नाउ इन योर नोट्स आपने बनाया होगा कि व्हाट आर द परसुएशन टेक्निक्स, सोशल प्रूफिंग, पर्सनल प्रूफिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्व, कम्युनिकेट, राइट। तो एग्जैक्टली आपका एक अप्लाइड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसका आंसर वही होने वाला है जो आपने वो टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ करी। आपको स्वच्छ भारत में भी वही कीवर्ड्स लिखने हैं परसुएशन या सोशल इन्फ्लुएंस के, जो व्हाट वर द टेक्निक्स दैट यू यूज्ड। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एंड इसीलिए सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस के सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि वर्क कल्चर, यू नो, क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू टॉक अबाउट, मेक योर नोट्स की व्हाट इज़ पुअर वर्क कल्चर, उसे कैसे इंप्रूव करना है। अगर क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी अच्छी नहीं है तो व्हाट कैन बी डन,
एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एक्सेट्रा. तो प्रोबेटी आपको पूरा देता है कि प्रोबेटी इन गवर्नेंस, एंड इट इज़ रिटन दैट द केस स्टडीज विल बी asked on the above issues. तो एटलीस्ट आपके पास एथिकल डिलेमास और एथिकल इश्यूज इन 4 कंपोनेंट्स के तो ऑलरेडी रेडी हो कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज एंड डिलेमास इन केस ऑफ अ पुअर वर्क कल्चर, इन द बैड और नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एंड द करप्शन चैलेंजेस वाले में क्या एथिकल इश्यूज एंड डिलेमास हो सकते हैं. नाउ इंपॉर्टेंटली इसमें अब वैल्यू एडिशन क्या हो जाता है किसी भी एथिक्स के आंसर के लिए. सबसे पहले मेरे पास कुछ एथिकल टर्मिनोलॉजीज हो जिसे मैं यूज़ कर सकूँ, फर्स्ट कॉम्पोनेंट. सेकेंड, मैं जो फेमस थिंकर्स हैं उन्हें कोट कर सकूं. अगर आप डायमेंशंस ऑफ एथिक्स को ब्रॉडन अप करते हैं तो आपके पास आई थिंक देयर इज़ अ डायमेंशन ऑफ डियोंटोलॉजिकल, देन देयर इज़ अ डायमेंशन ऑफ टेलोलॉजिकल, एंड देन देयर इज़ वर्च्यू एथिक्स, जो हम प्रिडोमिनेंट 3 पढ़ते हैं. तो इनसे रिलेटेड जो फेमस थिंकर्स हैं विच आर लाइक यू कैन टॉक अबाउट द एरिस्टोटल, देन इन वर्च्यू एथिक्स यू कैन टॉक अबाउट द कांट, इन द डियोंटोलॉजिकल एंड द टेलोलॉजिकल एस्पेक्ट्स यू कैन टॉक अबाउट द बेंथन और मिल. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो आप वहाँ से भी इन थिंकर्स को कोट कर सकते हैं. सेकेंड, आजकल बिकॉज देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैशनेट एथिक्स, फेमस थिंकर बीइंग गिलिगन, एंड ऑल्सो द कैपेबिलिटी एथिक्स, अमर्त्य सेन और द मार्था नुसरबाम. तो आप इन थिंकर्स को, जो प्रिडोमिनेंट जो मेजर थिंकर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जस्टिस डिलीवरी में हमारे डिलेमास के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको कोट करेंगे अपने आंसर के अंदर, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपने जो फिलोसफिकल चीज़ें पढ़ी हैं उनका एप्लीकेशन एक आंसर में आप शो कर पा रहे हैं या नहीं. Thirdly, आपके एग्जाम्पल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट. आप फेमस पर्सनालिटीज़ ले सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्पल्स रख सकते हैं रेडी, और साथ में कुछ पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल्स. अगर 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा कि सपोज मेरे पास 5 एग्जाम्पल्स रेडी हो पर क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के, ताकि मैं एक वास्ट कवरेज अपनी दिखा सकूँ. तो उसमें 13 into 5 इज़ नथिंग बट 65. तो एटलीस्ट मैं 65 एग्जाम्पल्स तो प्रिपेयर कर ही जाऊँ, राइट. एंड द फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ अ वैल्यू एडिशन कैन बी द कोट्स. तो ये आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखिए. इवन इन योर केस स्टडीज पार्ट यू कैन अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स वाइल यू आर गिविंग रीजनिंग फॉर एनी ऑप्शन दैट यू आर इवैल्यूएटिंग. उसमें भी ये चीज़ शो करिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि सेक्शन ए का एप्लीकेशन बच्चा समझा है, एंड देन ही इज़ अप्लाइंग और ही और शी इज़ अप्लाइंग ऑन टू द पेपर सेक्शन बी ऑफ द एथिक्स पेपर. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विद द चेंजिंग नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन यू आर वेल इक्विप्ड विद योर अंडरस्टैंडिंग, और वो आपकी सिलेबस और PYQ से बहुत ज़्यादा एनहांस्ड हो जाती है. रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू विल हैव टू प्ले अपॉन कि जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी या नॉलेज है. तो फॉर एग्जांपल मेरे को हिस्ट्री वाज माय फेवरेट, लाइक हिस्ट्री एंड पॉलिटी हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिन्होंने मुझे डीपली इन्फ्लुएंस किया है. तो आई वुड अर्जली टेक मतलब उसमें आई विल ट्राई टू फेच मोर मार्क्स. तो there are sections known as the knowledge traditions in ancient India or the medieval India. So I will quote an environmentalism theme in the history answers, or a craft traditions जो normally हम forget कर जाते हैं. तो with this I would wrap up the journal studies main strategy, and I would like to thank DKT for providing this platform ताकि मैं अपने experiences share करूँ, because मुझे भी बहुत help मिली इस platform से. And I have also a Telegram channel where I have also uploaded my notes. You can look into it, and thank you everyone.